नमस्कार, स्वागत है आपका न्यूज 19 में। मैं पुलकित सक्सेना आप लोग के साथ। आइए एक नजर डालते हैं न्यूज 19 के मॉर्निंग अपडेट की ओर। शिक्षा विभाग ने बुधवार को 50 साल से पुराने सेवा नियमों में बदलाव का निर्णय लिया। इसके आधार पर अब शिक्षा विभाग के लिए आयोजित प्रतियोगिता परीक्षा में अब अगर माइनस अंक आएंगे तो शिक्षक नहीं बन सकेंगे। परीक्षा में न्यूनतम 40% अंक प्राप्त करने होंगे। वर्षों पुराने जिला शिक्षा अफसर की सीधी भर्ती के प्रावधान को भी अब हटा दिया गया। शहर में अगले 2 दिनों के लिए गर्मी से राहत मिलने के संकेत हैं। आज सुबह से तेज धूप निकली हुई है और हल्के बादल भी छाए हुए हैं। शहर में 13 जून को मानसून के आने की घोषणा हो गई थी, लेकिन इसके बाद से मानसून ऐसा रूठा कि अब तक मात्र 35.4 mm बारिश हुई है। वहीं मौसम विभाग अभी भी यह मानने को तैयार नहीं कि मानसून आने की घोषणा में जल्दबाजी की गई। विभाग के अनुसार उस दौरान जो परिस्थितियां थी वह बहुत खतरनाक थी। पीएम नरेंद्र मोदी की नई कैबिनेट में राजस्थान का भी जलवा दिखा है। यहां से 3 कैबिनेट मंत्री और 2 राज्य मंत्री बनाए गए। ओडिशा से राज्यसभा सांसद और जोधपुर के रहने वाले अश्विनी वैष्णव को रेल और आईटी का जिम्मा सौंपा गया। अश्विनी पहले राजस्थानी हैं जिन्हें फुल फ्लैश रेल मंत्रालय मिला है। इससे पहले यूपीए सरकार में सीपी जोशी के पास रेलवे का आंतरिक चार्ज था। इसके अलावा भूपेंद्र यादव को 2 बड़े व अहम मंत्रालयों श्रम रोजगार व पर्यावरण मंत्रालय की जिम्मेदारी दी गई है। जब टाइगर रिजर्व के मुख्य जंगल बंद हो चुके हैं तो धलाना लेपर्ड रिजर्व में टूरिज्म की फिर से बहार है। बागडोर इन दिनों 1.5 साल के युवा नर बघेरे राणा के हाथ है। पर्यटकों ने न केवल इसकी खूब साइटिंग हो रही है बल्कि इसकी खास खूबी तस्वीरों में और जान भर देती है। टीम इंडिया को श्रीलंका दौरे पर 13 जुलाई से वनडे और T20 की सीरीज खेलनी है। बीसीसीआई ने इंग्लैंड दौरे के चलते श्रीलंका सीरीज के लिए बी टीम भेजी है। टीम की कमान शिखर धवन और कोचिंग राहुल द्रविड़ के हाथ में है और इस 19 सदस्यीय टीम के कप्तान समेत 6 खिलाड़ी ही श्रीलंका के खिलाफ वनडे सीरीज खेल सके हैं। मॉर्निंग अपडेट में फिलहाल इतना ही। बने रहिए न्यूज 19 के साथ। नमस्कार। Hello and welcome to News 19. Let's have a quick look on big news till now. The new ministers who took oath as part of Prime Minister Narendra Modi's reshuffled cabinet yesterday will resume charges today. In a mega resign, PM Modi brought A. Subramanian Sonowal, Narayan Rane and Jyotiraditya Scindia as cabinet minister while dropping as many as 12 ministers including Health Minister Harshvardhan, IT and Law Minister Ravi Shankar Prasad and IB Minister Prakash Javadekar. As many as 15 cabinet ministers including some new faces were sworn in at swearing-in ceremony held in Darbar Hall at Rashtrapati Bhavan. There are 53 union ministers. However, this ministry will be held only by 30 cabinet ministers and 2 ministers of state in independent charge. PM Modi Dharmendra Pradhan updates. Pradhan Mantri Narendra Modi and Union Education Minister Dharmendra Pradhan jointly interacted with the heads of centrally funded institute as well as Director of India's top college IITs and IIScs today. Discussion regarding ranking projects and undertaken by the IITs were discussed. The government of India is working on improving the ranking of Indian institute and position of nations as one of the study destinations. The move to conduct 4 new ministers from West Bengal on Wednesday evening is seen as reward to the new religion where the BJP gained during the 2021 assembly polls. Although Babulal Superior, Debashri Chaudhary resigned from their post as MOS Environment and Women and Child Development Inclusion of Nitish Pramanik, Dr. Subhash Sarkar joined Birla and Santanu Thakur has been done keeping in mind a specific vote bank according to political analysis. 5 militants were killed in 2 separate gun battles with security forces in Kulgam and Pulwama district of Jammu and Kashmir and Thursday. Security forces launched a cordon and search operation in Jodhar area of Kulgam district following information about the presence of militants in area. A police officer said the search operation turned into an encounter and militants opened firing on security forces who related Lashkar-e-Taiba militants have been killed in the operation which was going on. Last reports came in. A government-mandated study has found no traces of novel coronavirus in Ganga waters after the dead bodies were fished out from the river in some district of Uttar Pradesh and Bihar during the peak of second wave. The study was conducted by the National Mission of Clean Ganga under the Jal Shakti Ministry in collaboration with the Council of Scientific and Industrial Research, Indian Institute of Technology Research, Lucknow, the Central Pollution Control Board and the State Pollution Control Board. The study was conducted in 2 phases with the samples being taken from Kannauj and now Kanpur, Hamirpur, Allahabad, Varanasi, Balia, Buxar, Gazipur
Stay tuned with News 19. PUBG मोबाइल इंडिया के इंडियन वर्जन बैटल ग्राउंड मोबाइल इंडिया गेम को भारत में 2 जुलाई को ऑफिशियली लॉन्च कर दिया गया है। इस गेम को डाउनलोडिंग के सभी रिकॉर्ड्स तोड़ दिए हैं। इस गेम को गूगल स्टोर पर 10 मिलियन यानी 1 करोड़ से अधिक डाउनलोड किया जा चुका है। इस गेम को खेलने के लिए यूजर्स को इसके अर्ली एक्सेस ऐप को डाउनलोड करना होता है। बैटल ग्राउंड मोबाइल इंडिया को PUBG मोबाइल की तरह चेंज के साथ जारी किया गया है। आप अगर PUBG मोबाइल के फैन हैं तो उसकी कमी बैटल ग्राउंड इंडिया पूरी कर देगा। बता दें कि PUBG मोबाइल इंडिया को पिछले साल भारत में बैन कर दिया गया था, जिसके बाद दक्षिण कोरियाई फर्म क्राफ्टॉन ने बैटल ग्राउंड मोबाइल इंडिया को भारत में लॉन्च किया है। बैटल ग्राउंड मोबाइल इंडिया का फिलहाल बीटा वर्जन ही रिलीज किया गया है। वही खबर 12 से आ रही है, जहां युवाओं को 300 से अधिक युवाओं को सैनिक भर्ती के लिए तैयार किया जा रहा है। 11 जुलाई से अजमेर में होने वाली सेना भर्ती के लिए युवाओं की परीक्षा की घड़ी आ गई है। इसी क्रम में ई-मित्र सेंटरों की गलती से आवेदन पत्र ठीक तरीके से नहीं भरने से आवेदन पत्र निरस्त कर दिए गए थे। हाईकोर्ट में अपील की गई थी। कोर्ट ने विश्वास दिलाया है कि 11 जुलाई तक प्रवेश पत्र जारी कर दिया जाएगा। भगत सिंह डिफेंस एकेडमी के डायरेक्टर राजेश मीणा व विवेक शर्मा ने बताया कि 12 को पिछड़ा जिला खेल संकुल कोटा रोड 12 में युवाओं के सेना में भर्ती होने के गुण सिखाए जा रहे हैं। यहां पर 300 से ज्यादा युवाओं को अजमेर में होने वाली सेना भर्ती के लिए तैयार किया जा रहा है। युवाओं में जोश को देखते हुए उन्हें फौजी बना के जज्बे साफ देखे जा सकते हैं। सर, जो आप ये तैयारी करा रहे हो तो इन पे जो लोग पहले भी उन लोगों ने फार्म भरा था, हाँ, उस पे आप क्या कहना चाहते हो? सर जो फॉर्म भरा था लोगों ने तो ई-मित्र की गलती से वो रिजेक्ट हो गया। जब एडमिट कार्ड निकलाने गए बच्चे तो उनका एडमिट कार्ड नहीं निकला। ये सब ई-मित्र वालों की गलती है। तब हमें पता चला कि एडमिट कार्ड नहीं निकल रहे हैं, तो हमने आगे इंक्वायरी करी। ARO कोटा गए। ARO कोटा जाने के बाद में उन्होंने बोला कि हम कुछ नहीं कर सकते इसका। ZRO जाओ आप जयपुर से बोला कि हम कुछ नहीं कर सकते हैं। फिर हमने अपील करी है उच्च न्यायालय में। उन्होंने आश्वासन दिलाया कि हम आपका 11 तारीख के पहले एडमिट कार्ड जारी कर देंगे। तो लेकिन कितने बंदे हैं साहब? ये सब पूरे 8 जिलों में पूरे कोटा ARO के अंदर 100 लड़कों से ऊपर है। लेकिन 12 जिले में कितने हो सकते हैं? 12 जिले में लमसम 25 से 30 बच्चे हैं। तो आपका शुभ परिचय कैसा? सर मेरे राजेश मीणा नाम है मेरा। 12 डिस्ट्रिक्ट से हूँ। तो आप क्या कार्यरत हो साहब यहाँ पे? साहब मैं इनको ट्रेनिंग देता हूँ फौज की। जब मैं इधर आया तो यहाँ पे कोई माहौल नहीं था फौज का। इधर से सबसे कम जाते हैं बच्चे फौज के अंदर। RO के अंदर फिसड्डी के नाम से 12 को जाना जाता है। अब जैसे मैं इधर आया तो मेरे पास 5-6 लड़के थे अक्टूबर में। धीरे धीरे लड़के बढ़े, अब मेरे पास 100 लड़कों से ज़्यादा हैं। और साथ में गर्ल्स भी तैयारी कर रही है, दिल्ली पुलिस CNP की। इसके पहले मैंने राजस्थान पुलिस का बैच निकाला, उसमें से 6 जवान तैयार हुए और उनका सिलेक्शन हो गया। 4 लड़कियां हैं, 2 लड़के हैं। प्रेजेंट टाइम में वो ट्रेनिंग पे हैं। क्या विवेक जो बंदे हैं और जो ये ट्रेनिंग के लिए तैयार हुए हैं, इस पे आप क्या कहना चाहते हो? जैसा कि मैंने आपको पहले बताया है कि 12 की वरा नगरी में जो लोग देश के लिए, अपने मादरे वतन के लिए कुछ कर गुजरने की चाह रखते हैं, उनके लिए शहीद भगत सिंह डिफेंस एकेडमी जो है वो जो है उनको तैयारी करवाती है और उनके सपनों को साकार करने के लिए हम इन युवाओं को एक मंच देते हैं। 11 जुलाई से अजमेर में होने वाली सेना भर्ती के लिए युवाओं की परीक्षा की घड़ी आ गई है। इसी क्रम में ई-मित्र सेंटरों की गलती से आवेदन पत्र ठीक तरीके से नहीं भरने से आवेदन पत्र निरस्त कर दिए गए थे। हाईकोर्ट में अपील की गई थी। कोर्ट ने विश्वास दिलाया है कि 11 जुलाई तक प्रवेश पत्र जारी कर दिया जाएगा। भगत सिंह डिफेंस एकेडमी के डायरेक्टर राजेश मीणा व विवेक शर्मा ने बताया कि 12 को पिछड़ा जिला खेल संकुल कोटा रोड 12 में युवाओं के सेना में भर्ती होने के गुण सिखाए जा रहे हैं। यहां पर 300 से ज्यादा युवाओं को अजमेर में होने वाली सेना भर्ती के लिए तैयार किया जा रहा है। युवाओं में जोश को देखते हुए उन्हें फौजी बना के जज्बे साफ देखे जा सकते हैं। सर, जो आप ये तैयारी करा रहे हो तो इन पे जो लोग पहले भी उन लोगों ने फार्म भरा था, हाँ, उस पे आप क्या कहना चाहते हो?
सर जो फॉर्म भरा था लोगों ने तो ई मित्र की गलती से वो रिजेक्ट हो गया। जब एडमिट कार्ड निकलाने गए बच्चे तो उनका एडमिट कार्ड नहीं निकला। ये सब ई मित्र वालों की गलती है। तब हमें पता चला कि एडमिट कार्ड नहीं निकल रहे हैं, तो हमने आगे इंक्वायरी करी। ARO कोटा गए। ARO कोटा जाने के बाद में उन्होंने बोला कि हम कुछ नहीं कर सकते इसका। ZRO जाओ आप जयपुर से बोला कि हम कुछ नहीं कर सकते हैं। फिर हमने अपील करी है उच्च न्यायालय में। उन्होंने आश्वासन दिलाया कि हम आपका 11 तारीख के पहले एडमिट कार्ड जारी कर देंगे। तो लेकिन कितने बंदे हैं साहब ये सब पूरे 8 जिलों में पूरे कोटा ARO के अंदर 100 लड़कों से ऊपर है। लेकिन 12 जिले में कितने हो सकते हैं? 12 जिले में लमसम 25 से 30 बच्चे हैं। तो आपका शुभ परिचय कैसा? सर मैं राजेश मीणा नाम है मेरा, 12 डिस्ट्रिक्ट से हूँ। तो आप क्या कार्यरत हो साहब यहाँ पे? साहब मैं इनको ट्रेनिंग देता हूँ फ़ौज की। जब मैं इधर आया तो यहाँ पे कोई माहौल नहीं था फ़ौज का। इधर से सबसे कम जाते हैं बच्चे फ़ौज के अंदर। RO के अंदर फिसड्डी के नाम से 12 को जाना जाता है। अब जैसे मैं इधर आया तो मेरे पास 5-6 लड़के थे अक्टूबर में। धीरे धीरे लड़के बढ़े, अब मेरे पास 100 लड़कों से ज़्यादा हैं। और साथ में गर्ल्स भी तैयारी कर रही है, दिल्ली पुलिस CNP की। इसके पहले मैंने राजस्थान पुलिस का बैच निकाला, उसमें से 6 जवान तैयार हुए और उनका सिलेक्शन हो गया। 4 लड़कियां हैं, 2 लड़के हैं। प्रेजेंट टाइम में वो ट्रेनिंग पे हैं। क्या विवेक जो बंदे हैं और जो ये ट्रेनिंग के लिए तैयार हुए हैं, इस पे आप क्या कहना चाहते हो? जैसा कि मैंने आपको पहले बताया है कि वरा नगरी में जो लोग देश के लिए, अपने मादरे वतन के लिए कुछ कर गुजरने की चाह रखते हैं, उनके लिए शहीद भगत सिंह डिफेंस अकेडमी जो है वो जो है उनको तैयारी करवाती है और उनके सपनों को साकार करने के लिए हम इन युवाओं को एक मंच देते हैं। नमस्कार, स्वागत है आपका न्यूज 19 में। मैं पुलिस सेक्शन आप लोग के साथ। आइए नजर डालते हैं अखबार की सुर्खियां मेरे साथ। आप सभी को बता दूं कि कल देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मंत्रिमंडल में फेरबदल किया है। और इस मंत्रिमंडल के अंदर फेरबदल भी ऐसा वैसा नहीं, एक बड़े स्तर पर किया गया है, जिसके अंतर्गत कई मंत्रियों की छुट्टियां हुई हैं तो कई मंत्रियों को नए मंत्रियों को लगाया गया है। वहीं आप सभी को बता दूं कि इसके अंतर्गत कल टोटल मिलाकर के 43 मंत्रियों को शपथ दिलाई गई है और इसी के साथ साथ 12 मंत्रियों की कैबिनेट के अंदर से छुट्टी भी कर दी गई है। साथ ही साथ अब बता दूं आप सभी को कि अब कुल मिलाकर के 70 मंत्री हो चुके हैं और इसी के साथ साथ ज्योतिरादित्य सिंधिया जो पिछले साल ही भाजपा के अंदर शामिल हुए थे, उनको अब नागरिक उड्डयन का पद सौंप दिया गया है और इसी के साथ साथ अब वह इस पद पर अपना कार्यभार संभालेंगे। और कई ऐसे नेता, प्रकाश जावड़ेकर जैसों को हटा दिया गया है और इसी को लेकर के वह अचंभित भी बने हुए साफ साफ नजर आ रहे हैं। खैर, ये तो मोदी का एक फैसला है कि आखिरकार किस प्रकार से देश को चलाना है और देश को आगे तक लेकर जाना है। लेकिन वहीं दूसरी ओर जिनको हटाया गया है वह बेहद निराश हैं कि हमने इतने समय से कार्यभार संभाला, लेकिन उस कार्यभार से हमको हटा दिया गया क्योंकि वह कार्यभार सही प्रकार से नहीं संभाल पा रहे थे। साथ ही साथ आप सभी को एक बात और बता दूं कि राजस्थान की राजधानी जयपुर सहित कई जगह पर हवा के अंदर शुद्धता नजर नहीं आ रही है और हवा के अंदर लगातार बेहद ही जहरीली गैस घुलती हुई नजर आ रही है। अगर हम बात करें राजस्थान की राजधानी जयपुर की, तो यहाँ पर प्रदूषण का स्तर लगातार बढ़ता हुआ जा रहा है, जबकि पिछले 1 साल से लॉकडाउन लगा हुआ है। फिर भी अगर हम इस साल की बात करें तो इस साल 47% तक प्रदूषण में बढ़ोतरी हुई है और वहीं हवा के अंदर नाइट्रोजन डाइऑक्साइड की मात्रा 47% तक बढ़ चुकी है। वहीं इसी में आप सभी को बता दूं कि दिल्ली की बात करें तो दिल्ली सबसे ऊपरी स्थान पर है, वहां पर 125% तक नाइट्रोजन डाइऑक्साइड की मात्रा बढ़ी है। तो वहीं मुंबई के अंदर 52%, बेंगलोर के अंदर 90% और हैदराबाद के अंदर 59% तक इसमें बढ़ोतरी देखने को मिली है। साथ ही साथ आप सभी को एक बात और बता दूं कि राजस्थान के अंदर 41.07% लोग ऐसे हैं जिनको कोरोना की पहली डोज लग चुकी है। वहीं 8.48% लोग ऐसे हैं राजस्थान के अंदर जिनको दोनों डोज लग चुकी हैं।
और अब इसमें परेशानी की बात तो यह है कि डोज की मात्रा आ रही है कम और लगवाने वालों की संख्या हो गई है ज्यादा, क्योंकि जिन्होंने पहली डोज लगवाई है उनको दूसरी डोज भी लगवानी है और जिन्होंने पहली डोज ही नहीं लगवाई वे पहली डोज भी लगवाना चाहते हैं। तो इसी को लेकर के लगातार असमंजस बना हुआ है और परेशानी का दौर जारी है कि आखिरकार किस प्रकार से इस वैक्सीनेशन को किया जाएगा, क्योंकि अब इसका वैक्सीनेशन का पूरा जिम्मा केंद्र सरकार के ऊपर सौंप दिया गया है, क्योंकि राज्य सरकार का इसके अंतर्गत कोई भी हाथ शामिल नहीं है। वहीं आप सभी को आंकड़ों से भी अवगत कराता हूं कि राजस्थान की राजधानी जयपुर के अंदर कोरोना अब कम हो रहा है और अगर हम कल की बात करें तो कल 17 केस जयपुर के अंदर देखने को मिले हैं और इसी के साथ अच्छी खबर यह है कि एक भी व्यक्ति की कोरोना की वजह से मौत नहीं हुई है जयपुर के अंदर। तो वहीं जयपुर के सांगानेर के अंदर सबसे ज्यादा केस देखने को मिले हैं और वहां पर 4 कोरोना के पॉजिटिव मामले कल सामने आते हुए नजर आए हैं। तो इसी के साथ अखबार की सुर्खियों के अंदर तो फिलहाल इतना ही। बने रहिए न्यूज़ 19 के साथ। नमस्कार। बाड़मेर के बहुचर्चित कमलेश प्रजापत एनकाउंटर मामले में सीबीआई ने मुकदमा दर्ज कर लिया है। अब अनुसंधान में यह साफ होगा कि उनकी एनकाउंटर सोची समझी साजिश थी या फिर उन्हें पकड़ने के दौर में ये महज एक इत्तेफाक था। बाड़मेर के बहुचर्चित कमलेश प्रजापत एनकाउंटर मामले में सीबीआई ने आज बुधवार को मुकदमा दर्ज कर लिया है। अब अनुसंधान में यह साफ होगा कि कमलेश प्रजापत का एनकाउंटर सोची समझी साजिश और उनकी हत्या के प्रयास के लिए किया गया या स्थानीय पुलिस का षड्यंत्र था या फिर कमलेश की मौत उसे पकड़ने के लिए पुलिस ऑपरेशन के दौरान अचानक उत्पन्न परिस्थितियों की वजह से हुई। इसके लिए सीबीआई टीम बाड़मेर में मौके पर पहुंच गई है। गत 23 अप्रैल को कमलेश प्रजापत एनकाउंटर पर लगातार उठ रहे सवालों और भारी विवादों के बाद राजस्थान सरकार ने मामले की जांच सीबीआई को सौंपने का फैसला लिया है। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने कमलेश एनकाउंटर की जांच सीबीआई को देने की मंजूरी दी थी। इसके बाद गृह विभाग ने सीबीआई जांच की सिफारिश चिट्ठी और पूरे केस के दस्तावेज केंद्र सरकार को भेज दिए थे। कमलेश प्रजापत के एनकाउंटर के मुकदमे उठ रहे सवालों का सबसे पहले सीसीटीवी फुटेज के आधार पर पुलिस की थ्योरी पर सवाल उठने से लेकर एनकाउंटर के तरीके, एनकाउंटर के 4 घंटे तक स्वतंत्र व्यक्ति को कमलेश के घर पर नहीं बुलाने से लेकर घटना के हर पहलू का विमोचन किया था। इस मामले का खुलासा करने के बाद विपक्षी पार्टियों ने इस एनकाउंटर की सीबीआई जांच की मांग की थी। देहरादून में बुधवार को कांग्रेस ने महंगाई समेत तमाम मुद्दों पर मौजूदा बीजेपी सरकार को घेरने का काम किया है, जिसके विरोध में लगातार पुतले जलाकर प्रदर्शन किया गया। दून में बुधवार को कांग्रेस ने महंगाई समेत तमाम मुद्दों पर सरकार के खिलाफ हल्ला बोला। ऐसलहाल चौक पर प्रदेश अध्यक्ष प्रीतम सिंह की अगुवाई में कार्यकर्ताओं ने जोरदार प्रदर्शन किया। उन्होंने पुतला फूंक कर सरकार से अपना विरोध दर्ज कराया। राज्यभर में प्रदर्शनों की कड़ी में महानगर कांग्रेस कमेटी देहरादून के तत्वाधान में देहरादून में प्रदर्शन किया गया। प्रदेश अध्यक्ष प्रीतम सिंह ने कहा कि भाजपा सरकार ने बढ़ती महंगाई से आम आदमी परेशान है। रसोई गैस सिलेंडर के दाम लगातार बढ़ रहे हैं। महंगाई और कोरोना की मार से जनता बेहाल है। गिरती अर्थव्यवस्था का बोझ आम आदमी पर डाला जा रहा है। सरकार महंगाई पर लगाम कसने में नाकाम हो चुकी है। सरकार को जनता के दुख दर्द को दूर करना चाहिए, लेकिन पिछले लोकसभा चुनाव के बाद पेट्रोल के दाम में 28 और डीजल के दाम में 23 रुपए की बढ़ोतरी हुई है। दावा किया जा रहा है कि एक साल में सरसों का तेल 53 रुपए, सोयाबीन के तेल 53 रुपए से बढ़ोतरी हुई है। वहीं रसोई गैस के दाम 900 रुपए पहुंच गए हैं। वहीं आप सभी को बता दूं कि केंद्र सरकार ने जुलाई 2021 माह को डेंगू रोकथाम माह घोषित किया है। तो इसी को लेकर के अभी फुलेरा के अंदर क्या कुछ चल रहा है, आइए नजर डालते हैं। फुलेरा कस्बे के परशुराम सर्किल से नरेना जाने वाले मार्ग पर सर्किल से महज 200 मीटर दूर नगर पालिका की अनदेखी के चलते वार्डों से निकलने वाला गंदा पानी तालाब का रूप लेता जा रहा है, जिससे डेंगू मलेरिया जैसी घातक बीमारियों के लार्वा भी पनप रहे हैं। वहीं सार्वजनिक निर्माण विभाग की मुख्य सड़क भी कॉलोनियों का गंदा पानी आने के कारण पूरी तरह क्षतिग्रस्त हो चुकी है। समय रहते अगर संबंधित विभाग इसकी सुध नहीं ले पाया तो बारिश का मौसम निकट होने के चलते आवागमन का मार्ग तो अवरुद्ध होगा ही, साथ ही हादसे का खतरा भी मंडराता रहेगा।
सर, अभी जुलाई माह को केंद्र सरकार ने डेंगू रोधी माह घोषित किया है और फुलेरा पालिका क्षेत्र के अंदर जो फुलेरा से नरेना जाने वाला जो मार्ग है उस पर इतना गंदा पानी इकट्ठा हो रहा है काफ़ी समय से, वो भी रोड के किनारे। सर, इस मामले में पालिका का क्या कार्य रहेगा? ये पानी की पुरानी समस्या है। मैंने 15 दिन पहले मौका देखा था, अभी टैंकरों से पानी निकलवाया गया था, अभी टैंकरों से और पानी निकलवा रहे हैं। और इसके बाद हमने 8-10 दिन पहले मैंने इसका सर्वे कराने के लिए एक टीम लगा दी है। ये 2-4 दिन में सर्वे आ जाएगा, लेवलिंग आ जाएगी, तो अगले वीक तक इसका टेंडर हो जाएगा। उसके पश्चात ये पानी यहाँ से जाता हुआ चौराहे पे आएगा, सांबर रोड पे जाते हुए जो पानी पुराना नाला जा रहा है उसके अंदर जाके मिल जाएगा। एक उसका और एक वीर तेजाब चौक है, वहाँ से एक नाला आएगा, बीच में छुटा हुआ है, वो उसमें जाएगा। तो फिर ये 2 नाले बन जाएंगे तो पानी की समस्या खत्म हो जाएगी। सर, पानी की समस्या, चलो नाले की प्रक्रिया है वो थोड़ा लंबा समय लगेगा उसमें, लेकिन सर जो केंद्र सरकार के जो अभी आदेश पारित हुए हैं जुलाई माह को डेंगू रोधी घोषित करने का, लेकिन सर इस मामले में तत्काल पालिका प्रशासन की क्या कार्रवाई रहेगी उस पानी को लेकर? अभी तो पानी के लिए टैंकर आज लगा दें कल, और फिर डेंगू के लिए जो होते हैं तेल छिड़कना और करना, वो कार्रवाई मंगवा लिया है सामान, तो उसमें छिड़कवा देंगे ताकि मच्छर पैदा नहीं हो। ठीक है सर। चलिए अभी रुक करते हैं भीलवाड़ा जिले की, और जहां पर आप सभी को बता दूं कि भीलवाड़ा जिले के जहाजपुर के अंदर कोरोना वैक्सीनेशन के दौरान कोरोना गाइडलाइन की धज्जियां उड़ती हुई साफ नजर आ रही हैं। तो आइए एक नजर डालते हैं कि आखिर किस प्रकार से इस वैक्सीनेशन के दौरान वैक्सीनेशन की धज्जियां उड़ती हुई नजर आ रही है। जहाजपुर उपखंड क्षेत्र के खजूरी सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र पर पूर्व में उच्च अधिकारियों द्वारा फटकार लगाए जाने के बावजूद कोरोना गाइडलाइन की जम करके धज्जियां उड़ा करके कोरोना टीकाकरण किया जा रहा है। प्राप्त जानकारी के अनुसार 80 लोगों को आज टीका लगाया जाना था। 10 बजे से लोगों का आना जाना शुरू हो गया। प्रबंधन द्वारा उचित व्यवस्था न होने से भीड़ जमा हो गई। रजिस्ट्रेशन कक्ष के बाहर और अंदर लोगों का जमावड़ा भी लग गया। रजिस्ट्रेशन करने वाले कर्मचारियों ने भी मास्क नहीं लगा रखा था और ना ही बिना मास्क आए लोगों को किसी ने मास्क लगाने को कहा। बिना मास्क आए लोगों को रजिस्ट्रेशन कर टीकाकरण किया गया और टीकाकरण के वक्त भी लोगों ने मास्क नहीं लगाए हुए थे। और एक और जहां सरकार कई तरीकों से मास्क और सोशल डिस्टेंसिंग की पालना कराने के जतन कर रही है, तो वहीं खजूरी अस्पताल में न मास्क न सोशल डिस्टेंस का नियम फॉलो किया जा रहा है। अब ऐसे में आम जन को कोरोना से राम ही बचाए। नमस्कार, स्वागत है आपका न्यूज 19 में और मैं हूं आपके साथ स्वाति मिश्रा। अब तक की तमाम बड़ी खबरों की ओर नजर डालते हैं फटाफट अंदाज में। ईंधन की बढ़ती कीमतों को लेकर कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष और सांसद राहुल गांधी ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अगुवाई वाली केंद्र सरकार पर बुधवार को तंज कसा। तेल की बढ़ती कीमतों को लेकर राहुल गांधी ने अपने ट्वीट में लिखा कि आपकी गाड़ी चाहे पेट्रोल पर चलती हो या डीजल पर, मोदी सरकार टैक्स वसूली पर चलती है। कांग्रेस नेता पेट्रोल और डीजल की आसमान छूती कीमतों को लेकर इससे पहले भी कई बार सरकार पर हमला बोल चुके हैं। जम्मू कश्मीर के बारामूला का रहने वाला शौकत वहां वो सरकारी ठेकेदार है, जबकि जुबैर यूपी के शामिल का रहने वाला दोनों लोनी के रहने वाले रिंकू से चोरी की वाहन लेते, इसके बाद वाहनों की चेसिस इंजन नंबरों को बदलकर उन वाहनों को कम कीमत में बेच दिया करते थे। शौकत अब 100 से ज्यादा गाड़ियों को कश्मीर घाटी ले जा चुका है। शक है कि कहीं इन गाड़ियों का इस्तेमाल आतंकवादी न करते हों। इसकी जांच के लिए दिल्ली पुलिस की एक टीम कश्मीर जाएगी। जम्मू कश्मीर की सुरक्षा को लेकर आज श्रीनगर में बड़ी बैठक होने वाली है। इस बैठक की अध्यक्षता वर्तमान में जम्मू कश्मीर के उपराज्यपाल मनोज सिन्हा करेंगे। राजभवन की बैठक की जाएगी। इस अहम बैठक में डीजीपी और आईजी शामिल होंगे। सीआईडी और खुफिया एजेंसियों के बड़े अधिकारी भी मौजूद होंगे। ड्रोन हमले को लेकर भी चर्चा की जाएगी। वहीं बीते 24 घंटे में 5 आतंकियों का सफाया सुरक्षा बलों ने किया है। बिहार में सैलाब में मचा हाहाकार। बेतिया की टूटी नाव पर करीब 24 लोग सवार थे। नाव पर डूबते तट पर खड़े लोग सतर्क हो गए। तैराकों ने नदी के फौरन छलांग लगाई। सभी को रेस्क्यू किया गया। बड़ा हादसा होते होते बच गया। दरभंगा के घनश्यामपुरा में पानी में 2 मंजिला स्कूल। बारिश के बाद कई गाँव में बाढ़ से दहशत है। बिहार के बगहा में बसान नदी की बाढ़ का कहर। सैलाब में डूब चुके हैं खेत और खलिहान। योगी
योगी आदित्यनाथ ने उत्तर प्रदेश की जिस डॉक्टर के इलाज के लिए 1.5 करोड़ रुपए की सहायता राशि जारी की है उसको जल्द लंग ट्रांसप्लांट के लिए चेन्नई लेकर जाया जा सकता है। लखनऊ की लोहिया इंस्टीट्यूट की डॉक्टर शारदा सुमन को कोविड ड्यूटी के दौरान कोरोना हो गया था, जिसके बाद उनके फेफड़े खराब हो गए थे। कोरोना की वजह से उन्हें प्रीमेच्योर डिलीवरी भी करानी पड़ी थी। झालावाड़ जिले में एक बेकाबू डंपर ने टपकी के बाद सो रहे मजदूर परिवार के 5 लोगों को कुचल दिया। इस हादसे में 5 ही लोगों की मौत हो गई। मरने वालों में पति पत्नी और 3 बच्चे शामिल हैं। हादसा देर रात का बताया जा रहा है। घटना के बाद चालक डंपर छोड़कर फरार हो गया। कोरोना काल में बेरोजगारी से जूझ रहे युवाओं के लिए अच्छी खबर है। राजस्थान सरकार ने राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड की भर्तियों को संशोधित विज्ञप्ति जारी की है, जिसमें कृषि पर्यवेक्षक भर्ती पद और पटवारी भर्ती के 957 पद बढ़ाए गए हैं। राजस्थान के विधान सभा परिषद का गठन किया जाएगा। सीएम अशोक गहलोत की अध्यक्षता में बैठक हुई। इस दौरान विधान परिषद के गठन के प्रस्ताव पर मुहर लगा दी गई। कैबिनेट मंत्री में बैठक में तय किया गया कि विधान परिषद के गठन की कवायद जल्द शुरू की जाएगी। राजस्थान सरकार इस संबंध में एक चिट्ठी केंद्र को दोबारा भेजने का फैसला किया है। बुधवार को एक बार फिर कैबिनेट ने सर्वसम्मति से इस प्रस्ताव को पारित किया है। अलवर के अलावली बिहार थाना क्षेत्र के एक अधिवक्ता ने रामगढ़ के पूर्व विधायक जुबैर खान और उनके चौकीदार के खिलाफ जान से मारने की धमकी देने का मामला दर्ज करवाया है। पुलिस ने मामला दर्ज कर अनुसंधान शुरू कर दिया है। हिमाचल प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री वीरभद्र सिंह का 87 साल की उम्र में निधन हो गया। वीरभद्र सिंह के निधन से प्रदेश में शोक की लहर है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी समेत कई वरिष्ठ नेताओं ने वीरभद्र सिंह के निधन पर शोक जताया है। प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री वीरभद्र सिंह के निधन के बाद प्रदेश सरकार ने 3 दिन का राजकीय शोक घोषित किया है। वहीं दौसा जिले से खबर आ रही है, जिसमें चरागाह की 265 बीघा भूमि पर अतिक्रमणकारियों का फैला है जाल। रामगढ़ पचौरा में प्रशासन न्यायालय के आदेशों की अवहेलना भी की जा रही है, तो वहीं प्रशासन की अनदेखी के चलते अतिक्रमणकारियों के हौसले बुलंद हो गए हैं। चरागाह भूमि पर अतिक्रमियों के सामने प्रशासन भी पस्त है, तो वहीं न्यायालय ने 2 माह में अतिक्रमण हटाने के निर्देश दिए, मगर 4 माह गुजर जाने के बाद भी अतिक्रमण नहीं हटा है। उपखंड रामगढ़ पचौरा के गांव सिसोदिया में चरागाह भूमि पर हो रहा है खेती कार्य और अवैध निर्माण, तो वहीं उपखंड प्रशासन की अनदेखी, न्यायालय के आदेशों की उड़ रही हैं धज्जियां और चरागाह भूमि अतिक्रमण को लेकर समाज सेवी रामप्रसाद मीणा पहुंचे हैं न्यायालय की शरण में। हाईकोर्ट जयपुर ने 23 फरवरी 2021 के निर्णय में चरागाह भूमि से अतिक्रमण हटाने के निर्देश दिए, तो वहीं उपखंड रामगढ़ पचौरा प्रशासन ने न्यायालय के आदेशों को ताक में रखा है। साथ ही रामगढ़ पचौरा उपखंड कार्यालय से लेकर जिला कलेक्टर दौसा तक पीड़ित चक्कर काट रहे हैं। साथ ही साथ न्यायालय के आदेशों की अनदेखी के चलते प्रशासन की कार्यशैली पर सवालिया निशान भी उठ रहे हैं। क्या मामला है? ग्राम सिसोदिया, तहसील रामगढ़ पचौरा, जिला दौसा में चरागाह भूमि 165 बीघा है, जिस पर गांव के कई लोगों ने अतिक्रमण कर रखा है और उसको भूमि को जोत रखी है, मकान बना रखे हैं, घर बना रखे हैं। तो हमने लगातार रामगढ़ पचौरा तहसीलदार, एसडीएम और जिला कलेक्टर को लगातार इस बात से अवगत कराया गया है। इसके बाद भी कार्रवाई नहीं हुई है। इसके बाद हमने परेशान होकर कलेक्टर, एसडीएम, तहसीलदार से परेशान होकर हम कोर्ट के दरवाजे पर गए। दरवाजे पर जाकर हमने कोर्ट के आदेश निकलाया। जो आदेश निकालने के बावजूद भी हमारे जो लोगों ने चरागाह भूमि पर अतिक्रमण कर रहा है उनके ऊपर कोई किसी प्रकार का कार्रवाई नहीं हुई है। और उस कोर्ट के आदेशों को कितने महीने हो गए? करीब 4 महीने हो गए। कितने लोगों के खिलाफ कोर्ट ने करीब 22 लोगों के खिलाफ। क्या क्या नाम है उन लोगों के? उसके नाम है कालराम मीणा, भगवान साई, बलराम, सोजीराम, जंशीराम, ये नाम है। इन लोगों ने क्या कर रखा है? ये मकान बना रखे है जमीन पर, कच्चे झोपड़े हैं और बाहर रखी है जमीन को चरागाह भूमि पर। हाँ। तो क्या रामगढ़ प्रशासन ने कोई कार्रवाई नहीं कर रहा है? रामगढ़ प्रशासन ने किसी प्रकार की कोई कार्रवाई नहीं की है। कोर्ट के आदेश आने के बाद भी कोई कार्रवाई नहीं हुई है। तारीख के ऊपर तारीख हमको देते रहे हैं और लगातार कोर्ट के आदेश हम चक्कर काट रहे हैं रामगढ़ पचौरा में। तो तहसीलदार
और एसडीएम साहब ये कह के भी देते हैं और कार्रवाई हम कर रहे हैं हमारी। वहीं इस वक्त की बड़ी खबर जम्मू से आ रही है, जहां जम्मू कश्मीर में सुरक्षा बलों आतंकियों में मुठभेड़ की खबर सामने आ रही है। आपको बता दें कि अलग अलग जगहों पर मुठभेड़ हुई है। सुरक्षा बलों ने 24 घंटे में करीब 5 आतंकी मार गिराए हैं। झालावाड़ के तीनदार के पास सड़क हादसा देखने को मिला है। तो वहीं आप सभी को बता दूं कि डंपर की चपेट में आने से 5 लोगों की मौत हो चुकी है। दुर्घटना में दंपति और 3 बच्चों की मौत हुई। तो वहीं सड़क किनारे सो रहे थे सभी और मंडावर थाना पुलिस ने इसकी जानकारी दी। नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज़ 19। हरियाणा की अब तक की बड़ी खबरों की ओर नजर डालते हैं। लगातार पेट्रोल और डीजल के बढ़ते दामों के बीच अब सीएनजी के दाम में भी बढ़ोतरी दर्ज की गई है। तेल कंपनियों ने आज एक बार फिर से आम लोगों को झटका दिया है। तो वहीं दूसरी ओर सीएनजी ने इस बढ़ोतरी के पीछे नहीं है। सरकारी तेल कंपनियों की ओर से आज भी पेट्रोल डीजल के दामों में बढ़ोतरी हुई है। आज डीजल की कीमतें 9 पैसे बढ़ गई हैं, जबकि पेट्रोल की कीमत 35 पैसे तक बढ़ गई है। वहीं दिल्ली में सीएनजी के दाम आज से बढ़ोतरी की जाएगी। पहले दिल्ली में सीएनजी 43 रुपए 40 पैसे प्रति लीटर हुआ करता था, जबकि अब बढ़कर 44 रुपए 30 पैसे प्रति किलोग्राम हो गया है। इसी प्रकार से पीएनजी की कीमत 96 रुपए 66 पैसे एससीएम पहुंच गई है। नोएडा में सीएनजी के दाम करीब 49 रुपए 9 पैसे प्रति लीटर से बढ़कर आज 49 रुपए 98 रुपए प्रति किलोग्राम हो गया है। जिला फरीदाबाद के गांव खोरी में मकानों को तोड़ने का काम शुरू कर दिया गया है। प्रशासन की तरफ से सबसे पहले पहाड़ से सबसे ऊंचाई वाले मकान को तोड़ने का काम किया जा रहा है, क्योंकि इन मकानों को कई साल पहले भी तोड़ा गया था, इसलिए अब अभी तक अस्थायी तौर से बने हुए हैं। ऐसे में इनमें रहने वाले लोगों को घरों से बाहर निकालकर मकानों को तोड़ने का काम किया जा रहा है। हरियाणा के मुख्यमंत्री भूपेंद्र हुड्डा की सरकार के दौरान रोहतक में आवंटित जमीन के मामले में केंद्रीय जांच ब्यूरो को आज जांच के आदेश दे दिए गए हैं। पूर्व मुख्यमंत्री भूपेंद्र सिंह हुड्डा की सरकार में रोहतक में रियल एस्टेट बिल्डर उदार गगन प्रॉपर्टीज लिमिटेड को जमीन आवंटित की गई। इस जमीन के अधिग्रहण की प्रक्रिया इनेलो सरकार में हुई थी। हुड्डा सरकार के समय बिल्डर कंपनी को लाइसेंस मिला था। अब हरियाणा शहरी विकास प्राधिकरण जमीन को वापस लेकर उसे स्तर पर डेवलप कर रहा है। पूर्व सीएम ओपी चौटाला के जेल से बाहर आते ही प्रदेश में सियासी पारा चढ़ चुका है। दूसरी तरफ इस बीच ओपी चौटाला के चुनाव लड़ने पर 6 साल के लगे प्रतिबंध को हटाने के लिए भी चुनाव आयोग में याचिका दाखिल कर दी गई है। ऐसे में ओपी चौटाला के जेल से बाहर आने और उनके चुनाव लड़ने से प्रदेश की राजनीति पर क्या असर पड़ेगा, इस पर उनके पोते और हरियाणा के डिप्टी सीएम दुष्यंत चौटाला ने प्रतिक्रिया दी है। दुष्यंत चौटाला ने कहा कि वो 1 साल से जेल से बाहर हैं और जेजेपी पर उनके बाहर आने का कोई असर नहीं पड़ेगा। हरियाणा में बढ़ती गर्मी से लोगों का बुरा हाल है। आज हरियाणा में मौसम का पूर्वानुमान भीषण गर्मी की चेतावनी दे रहा है। मौसम विभाग चंडीगढ़ के मुताबिक आज हरियाणा के कई जिलों में हीटवेव चलेगी। वहीं हालांकि बीच बीच में बादल छाए रहने की भी आशंका है, लेकिन उसका तापमान पर कोई असर पड़ने वाला नहीं है। दिन में आज तापमान में बढ़ोतरी दर्ज की जाएगी। हरियाणा में अधिकतम तापमान 45 डिग्री सेल्सियस तक जा सकता है। आज के हरियाणा बुलेटिन में बस इतना ही। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए देखते रहिए न्यूज़ 19। वहीं खबर दौसा जिले से सामने आ रही है, जहां पर दौसा जिले के अंदर शहीद स्मारक के लिए बजट का आवंटन किया गया और इसी के चलते हुए कर्नल देवानंद गुर्जर ने मुख्यमंत्री अशोक गहलोत का आभार व्यक्त किया। सैनिक सेवा समिति के समय समय पर सैनिकों से जुड़े मुद्दे नागरिक और सरकार के सामने रखने के प्रयासों के मद्देनजर राजस्थान सरकार ने दौसा जिला कलेक्ट्रेट स्थित शहीद स्मारक बनाने की सैनिकों की मांग को पूरा करते हुए राजस्थान प्रदेश मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने 27.84 लाख रुपए का बजट आवंटित करते हुए टेंडर आदेश जारी कर दिए। कर्नल देवानंद गुर्जर राष्ट्रीय अध्यक्ष ने विजेंद्र बासड़ा जिलाध्यक्ष सैनिक सेवा समिति दौसा, जिला दौसा प्रवक्ता समय सिंह बासड़ा, मीडिया प्रभारी पप्पू सिंह, वहीं उपाध्यक्ष सूबेदार राजा राम, महासचिव सूबेदार धर्म सिंह, सुरेंद्र माल, हरकेश, राजा राम जी, भगवान सहाय कोषाध्यक्ष, प्रभाती लाल शर्मा, प्यारेलाल मीणा व सचिव व दौसा जिला के समस्त भूतपूर्व सैनिकों को बधाई देते हुए
बताया कि दौसा में शहीद स्मारक निर्माण के विचार को क्रियान्वित करने से लेकर सरकार द्वारा जमीन को चिन्हित करना एवं बजट आवंटित करने तक की कार्रवाई प्रदेश के नागरिकों का मां भारती की सेवा करने वाले सैनिकों के सम्मान का एक प्रतीक है। कर्नल गुर्जर ने सैनिक न्याय समिति की ओर से राजस्थान सरकार का आभार भी जताया है। इसी तर्ज पर कर्नल ने विक्टोरिया क्रॉस कमला राम गुर्जर को उचित सम्मान देने की दिशा में करौली स्थित गवर्नमेंट कॉलेज का नामांकन, जयपुर में किसी एक मुख्य मार्ग का नाम एवं किसी मुख्य चौराहे पर विक्टोरिया क्रॉस विजेता की मूर्ति रखे जाने की मांग को पूरा करने का आग्रह दोहराया। वही खबर श्रीगंगानगर से, जहां पूर्व विधायक हेतराम बेनीवाल के बयान को लेकर विवाद छिड़ गया है। भाजपा के जिला स्तरीय प्रदर्शन को लेकर ये बयान दिया गया था। भाजपा के प्रदर्शन के दौरान किसान नेताओं ने काले झंडे दिखा दिए थे। चलिए अब एक रुख करते हैं राजधानी जयपुर की ओर, जिसमें आप सभी को बता दूं कि संयुक्त किसान मोर्चा के आह्वान पर आज राजधानी जयपुर में पेट्रोल डीजल की बढ़ती दरों को लेकर के विरोध प्रदर्शन किया गया। संयुक्त किसान मोर्चा के आह्वान पर आज भारतीय किसान यूनियन एवं अन्य किसान संगठन कलेक्ट्री सर्किल जयपुर में सुबह 10 बजे से 12 बजे तक पेट्रोल डीजल व रसोई गैस की अनियंत्रित बढ़ती कीमतों के विरोध में प्रदर्शन करने लगे एवं जिला कलेक्टर को राष्ट्रपति के नाम ज्ञापन भी दिया। सर बताएं, आज यहाँ पर धरना प्रदर्शन कर रहे हैं, किस वजह से कर रहे हैं? वैसे क्या है आपको आगे मतलब याद तो हमारे क्या आ गई, पूरे देश की आ गई, गले में आ गई है। अब तक तो मतलब तेल की बात, अब तो हम कहते हैं जनता का तेल निकाल दिया गया है, किसानों का तो सब कुछ खत्म ही किया गया। संयुक्त किसान मोर्चा अब तक जो लड़ाई लड़ रहा था वो किसानों की लड़ाई लड़ रहा था, लेकिन अब संयुक्त किसान मोर्चा किसान की ही लड़ाई है, लेकिन चूंकि आम नागरिक की किसानी है। खेती में सबसे ज़्यादा तेल की खपत खेती कृषि में ही होता है, सबसे बड़ा उपभोक्ता किसान वर्ग ही है। तो आज किसान जो है वो 3 कृषि कानूनों की मारी जा रही थी, लेकिन जिस तरह से पेट्रोल डीजल की कीमतें बढ़ रही है, रसोई गैस की कीमतें पिछले 4 साल में 4 गुना हो गई है, पेट्रोल डीजल की कीमतें 2 गुना हो गई है। कोरोना काल में लोगों का रोजगार छिन गया है, लेकिन मोदी सरकार का पेट्रोल डीजल का रेवेन्यू बढ़ गया है। ये इस देश के लिए शर्म की बात है। जिस सरकार को कोरोना काल में आम नागरिक की सहायता करनी चाहिए, वो उसके जेब पे डकैती डाल रही है। इसलिए संयुक्त किसान मोर्चा और भारतीय किसान यूनियन ने यहाँ पूरे देश में है, लेकिन यहाँ जयपुर में भी प्रदर्शन रखा है। हमने अभी हॉर्न बजा करके सरकार को चेताया है कि अब जाग जाओ, बहुत हो गया। अब हम आज यही प्रदर्शन कर रहे हैं, हम राष्ट्रपति टीम को ज्ञापन दे रहे हैं। ये लगातार कार्यक्रम चलेंगे, उस कार्यक्रम के शरीर में संयुक्त किसान मोर्चा महंगाई की लड़ाई भी लड़ेगा। बताएं सर, आज जो धरना प्रदर्शन किया जा रहा है, क्या आपकी मांग है? आज प्रदर्शन कृषि महंगाई के खिलाफ है हमारा। जो महंगाई कोरोना काल में महंगाई 3 गुना 4 गुना हो गई खरीद, तो जैसे अनाज की महंगाई है, खाद तेल है, चाहे चीनी है, कोई भी वस्तु नहीं है जो सस्ती नहीं हो। इधर इनकम कम हो गई और महंगाई डबल हो गई और बेरोजगारी 4 गुना हो गई। उसके खिलाफ हम लोग प्रदर्शन कर रहे हैं। और ये महंगाई की मार किसानों की नहीं है, आम आदमी की है। कोई भी आम आदमी है जो पानी की बोतल लो, चाहे अनाज खरीदो, चाहे खाद तेल खरीदो, चाहे दूध सब्जी, सब चीज़ महंगी है। आज के टेक्नो न्यूज में हम बात करेंगे पबजी इंडिया की। जी हाँ, अगर आप पबजी के फैन हैं तो आप लोगों के लिए 2 जुलाई को पहले ही खुशखबरी आ चुकी है, क्योंकि पबजी इंडिया का इंडिया वर्जन को 2 जुलाई को प्ले स्टोर पे लॉन्च कर दिया गया था। जिसके बाद आपको बता दें कि पबजी के चाहने वालों ने एक जोरदार रिकॉर्ड बनाया है, जिसके बाद 2 जुलाई के बाद लगभग रिकॉर्ड 2 डाउनलोड्स किए हैं। आपको बता दें कि लगभग 1 करोड़ डाउनलोड कर लिए गए। पबजी मोबाइल इंडिया के इंडियन वर्जन बैटल ग्राउंड मोबाइल इंडिया गेम को भारत में 2 जुलाई को ऑफिशियली लॉन्च कर दिया गया है। इस गेम को डाउनलोडिंग के सभी रिकॉर्ड्स तोड़ दिए हैं। इस गेम को गूगल स्टोर पर 10 मिलियन यानी 1 करोड़ से अधिक डाउनलोड किया जा चुका है। इस गेम को खेलने के लिए यूजर्स को इसके अर्ली एक्सेस ऐप को डाउनलोड करना होता है। बैटल ग्राउंड मोबाइल इंडिया को पबजी मोबाइल की तरह चेंज के साथ जारी किया गया है। आप अगर पबजी मोबाइल के फैन हैं तो उसकी कमी बैटल ग्राउंड इंडिया
पूरी कर देगा। बता दें कि पबजी मोबाइल इंडिया को पिछले साल भारत में बैन कर दिया गया था, जिसके बाद दक्षिण कोरियाई फर्म क्राफ्टॉन ने बैटलग्राउंड मोबाइल इंडिया को भारत में लॉन्च किया है। बैटलग्राउंड मोबाइल इंडिया का फिलहाल बीटा वर्जन ही रिलीज किया गया है। वही खबर दौसा जिले से आ रही है, जहां पर दौसा जिले के बांदीकुई के अंदर आज कांग्रेस के द्वारा प्रदर्शन किया जा रहा है पेट्रोल और डीजल की बढ़ती मांगों को लेकर के। राजस्थान प्रदेश कांग्रेस कमेटी के आह्वान पर विधायक गजराज खटाना के निर्देशानुसार आज बांदीकुई में नगर अध्यक्ष अशोक काट के नेतृत्व में देश में लगातार पेट्रोल, डीजल, रसोई गैस के दाम में लगातार आसमान छू रहे हैं। इसके विरोध में हस्ताक्षर अभियान का आगाज किया गया, जो कि 8 जुलाई से 15 जुलाई तक लगातार जारी रहेगा। इसमें काफ़ी संख्या में कार्यकर्ता मौजूद रहे हैं और इसी दौरान पूर्व पालिका अध्यक्ष पूरणमल शर्मा, पालिका अध्यक्ष, पालिका उपाध्यक्ष राजेश शर्मा, पार्षद राजेंद्र चौधरी, बनवारी बैरवा, रामकिशन बैरवा, बहादुर बैरवा सहित कई लोग मौजूद रहे। चलिए अब एक रुख करते हैं अगली खबर की ओर, जो राजधानी जयपुर से सामने आ रही है, जहां पर परिवहन मंत्री प्रताप सिंह खाचरियावास ने मानवता दिखाते हुए सड़क पर तड़प रहे व्यक्ति की सहायता की और उसे एम्बुलेंस की सहायता से अस्पताल के अंदर भी पहुंचाया है। साथ ही साथ उसका इलाज भी मुफ्त करवाया और वह 2 दिन से भूखा बताया जा रहा था। तो प्रताप सिंह खाचरियावास ने उनकी सहायता भी की है और आखिर उन्होंने क्या कुछ कहा, आइए जानते हैं हमारे इस खास रिपोर्ट से। कल शाम को 4 बजे मंत्री प्रताप सिंह खाचरियावास अपने निवास से सुभाष नगर में टीए की बैठक में जा रहे थे। खासाकोटी पुलिया के नीचे उन्होंने तड़पते हुए एक व्यक्ति को फुटपाथ पर देख करके गाड़ी को तुरंत रुकवाया। उस अनाथ तड़पते हुए मरीज के पास पहुंचे तथा उसके हालचाल पूछने पर पता चला कि पिछले 3 दिन से इस मरीज ने कुछ भी नहीं खाया। मरीज ने अपना नाम अनिल बताया। उसकी हालत बहुत खराब थी, पैर में जख्म हो गए थे। खाचरियावास ने तुरंत कावटिया हॉस्पिटल के अधीक्षक डॉक्टर हर्षवर्धन को एम्बुलेंस सहित मौके पर बुलाया और मरीज को हॉस्पिटल में इलाज हेतु तुरंत एडमिट करने के लिए निर्देश किया। साथ ही अपनी जेब से 500 रुपये मरीज को भोजन हेतु दिए गए तथा उसे निःशुल्क इलाज हेतु हॉस्पिटल में एडमिट कर उपचार करवाने के लिए निर्देशित करते हुए उसे भिजवाया गया। मंत्री खाचरियावास ने इस पूरे प्रकरण में हॉस्पिटल अधीक्षक डॉक्टर हर्षवर्धन, पुलिस प्रशासन एवं एनजीओ को भी मौके पर बुलाया और वे स्वयं 1 घंटे तक वहीं खड़े होकर मरीज को एम्बुलेंस में भिजवाने तक वहीं खड़े रहने के पश्चात ही वापसी रवाना हुए। शाम को कैबिनेट की मीटिंग होने की वजह से वे स्वयं टीए की बैठक में भी नहीं जा पाए और सीएमआर मीटिंग में शामिल होने के लिए वापस सिविल लाइन से रवाना हुए। इस पूरे प्रकरण में जनता मौके पर इकट्ठी हो गई और अपने जनसेवक, विधायक एवं मंत्री को सड़क पर इस प्रकार के पुण्य काम करते देख जिंदाबाद जिंदाबाद के नारे लगाए गए। मंत्री खाचरियावास ने अनिल के परिजनों से अपील की है कि उन्हें उनकी सूचना मिलने पर वे उनके इलाज के पश्चात उन्हें घर वापसी हेतु कावटिया हॉस्पिटल से ले जा सकते हैं। कौशिक साहब, इन्हें क्या हुआ? ये तो मिनिस्टर साहब यहाँ से निकल रहे थे, उन्होंने इस आदमी की हालत देख के मैं भी जा रहा था, मुझे भी रोक लिया, बोले इसको हॉस्पिटल भेजाओ। साहब ने इसको देखा, फिर दौरा किया, फिर वहाँ पे एक और आदमी पड़ा हुआ है, साहब ने कहा इसको भी हॉस्पिटल भेजाओ। जी, क्या कहना चाहिए? ये स्थिति इसकी बहुत ख़राब है, इसको भी हॉस्पिटल भेजते हैं क्योंकि इसका कहीं मुझे लग रहा है कीड़े पड़ गए, ये इसके कीड़े पड़ गए। इसके ऑपरेशन तो किया है लेकिन ये ना रोटी खा रहा है 2-4-5 दिन से, गैंग्रीन हो गया, पता नहीं क्या हुआ है, लेकिन अभी इसको हॉस्पिटल भेजते हैं। इसकी हालत बहुत ख़राब है। मैं इधर से जा रहा था, देखा इसको क्या स्थिति है इसकी, देख लेते हैं, हो जाएगा। हॉस्पिटल भेजते हैं क्योंकि रोटी भी नहीं खा पा रहा दर्द के मारे।
वही खबर जयपुर से, जहां मुरलीपुरा में 3 तलाक का एक मामला सामने आया है, जिसमें महिला की ओर से मुकदमा दर्ज करवाया गया है। पति जावेद खान के खिलाफ मुकदमा दर्ज करवाया गया। 3 तलाक बोलकर धमकी देने का ये मामला है। मुरलीपुरा पुलिस महिला की शिकायत पर जांच कर रही है। नरेंद्र मोदी की नई कैबिनेट के अंदर राजस्थान का जलवा देखने को मिला। आपको बता दें कि नरेंद्र मोदी की कैबिनेट में करीब 3 कैबिनेट मंत्री राजस्थान से हैं, वहीं 2 राज्य मंत्री राजस्थान से बनाए गए हैं। और ये इतिहास में पहली बार हुआ है कि राजस्थान केंद्र के अंदर इतना ताकतवर बन के उभरा है। पीएम नरेंद्र मोदी की नई कैबिनेट में राजस्थान का भी जलवा दिखा। यहाँ से 3 कैबिनेट मंत्री और 2 राज्य मंत्री बनाए गए। ओडिशा से राज्यसभा सांसद और जोधपुर के रहने वाले अश्विनी वैष्णव को रेल और आईटी का जिम्मा सौंपा गया है। अश्विनी पहले राजस्थानी हैं, जिन्हें फुल प्लस रेल मंत्रालय मिला है। इससे पहले यूपीए सरकार में सीपी जोशी के पास रेलवे का अतिरिक्त चार्ज था। इसके अलावा भूपेंद्र यादव के 2 बड़े व अहम मंत्रालयों पर श्रम, रोजगार व पर्यावरण मंत्रालय की जिम्मेदारी दी गई है। वहीं गजेंद्र सिंह शेखावत के पास अब भी जल शक्ति मंत्रालय है। दिलचस्प ये है कि अब सीएम गहलोत के गृह जिले जोधपुर से मोदी कैबिनेट में 2 मंत्री हो गए हैं, एक शेखावत व दूसरे वैष्णव। यही नहीं, राजस्थान के अर्जुन राम मेघवाल और कौशल चौधरी बतौर राज्य मंत्री मोदी कैबिनेट में शामिल हैं। कोटा सांसद ओम बिरला लोकसभा स्पीकर हैं। इस तरह देखा जाए तो 2 दशक में पहली बार राजस्थान केंद्र में इतना पावरफुल हुआ है। मोदी सरकार में कैबिनेट मंत्री बनाए गए भूपेंद्र यादव राजस्थान से राज्यसभा सांसद हैं। उनके केंद्र में कैबिनेट मंत्री बनने के पीछे सियासी समीकरण साधने की कवायद तो है ही। आरएसएस और बीजेपी के टॉप नेताओं से उनके अच्छे संपर्कों के अलावा राम मंदिर केस में उनकी भूमिका भी एक प्रमुख कारण माना जा सकता है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी संभालेंगे विज्ञान और तकनीकी मंत्रालय। जी हाँ, बड़ी खबर हम आपसे अभी तक पहुँचा रहे हैं कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी विज्ञान और तकनीकी मंत्रालय भी संभालेंगे। तो वहीं अमित शाह संभालेंगे सहकारिता मिनिस्ट्री और स्वास्थ्य मंत्री बने मनसुख मांडविया। साथ ही साथ हरदीप पुरी बनाए गए हैं पेट्रोलियम मंत्री। तो वहीं अश्विनी वैष्णव को रेल मंत्रालय सौंपा गया और ज्योतिरादित्य सिंधिया नागरिक उड्डयन मंत्री बने हैं। वहीं खबर रतनगढ़ से सामने आ रही है, जहां पर महंगाई के खिलाफ कांग्रेस का प्रदर्शन देखने को मिल रहा है। देहात व शहर ब्लॉक कांग्रेस कमेटी ने इस पर प्रदर्शन किया। तो वहीं पेट्रोल, डीजल व गैस की बड़ी दरों को लेकर के प्रदर्शन किया जा रहा। साथ ही साथ पेट्रोल पंप पर केंद्र सरकार के खिलाफ में नारेबाजी भी की गई। आप सभी को बता दूं कि रामगढ़ पचौरा में लालसोट मुख्यालय पर शिक्षकों ने ज्ञापन सौंपा है। आखिर ये ज्ञापन किस मुद्दे को लेकर के सौंपा गया, आइए जानते हैं हमारी इस खास रिपोर्ट से। दौसा जिले के उपखंड मुख्यालय लालसोट व रामगढ़ पचौरा मुख्यालय पर बुधवार को ब्लॉक लालसोट शिक्षक संघ रैस्टा ने जिला अध्यक्ष सांवरलाम सोनर के नेतृत्व में 11 सूत्री मांग को लेकर के मुख्यमंत्री के नाम लालसोट एसडीएम व रामगढ़ पचौरा कार्यालय में ज्ञापन सौंपा है। शिक्षक संघ लालसोट ने ज्ञापन में बताया कि डार्क जोन समाप्त किया जाए और प्रबोधक एवं तृतीय श्रेणी शिक्षकों के स्थानांतरण एवं पूर्व में 16,463 वरिष्ठ अध्यापकों के लिए आवेदनों की तबादला सूची जारी की जाए। महंगाई भत्ते पर लगाई रोक हटाई जाए और एनपीएस के स्थान पर पुरानी पेंशन योजना लागू की जाए। वहीं राजकीय सेवा में सीधी भर्ती से उच्च पदों पर पद स्थापित होने पर उन्हें परिवीक्षा अवधि में नहीं रखा जाए एवं नियुक्ति तिथि से ही पूरा वेतन व अन्य लाभ दिए जाएं। ज्ञापन में यह भी बताया गया कि राज्य में वरिष्ठ अध्यापक के अंतर मंडल व तृतीय श्रेणी अध्यापक के जिले से अन्य जिले में तबादला होने पर वरिष्ठता का विलोपन होता है, इसलिए राजस्थान पुलिस और राजस्व विभाग ने इसे समाप्त कर दिया। साथ ही अंतर मंडल तबादलों पर वरिष्ठता विलोपन नहीं करते हुए राजस्थान सेवा नियम 1971 के नियम 29 के परंतु 10 को विलोपित कर प्रथम नियुक्ति तिथि आरपीएससी वरीयता क्रमांक से ही
राज्य स्तरीय वरिष्ठता बनाकर राज्य के हजारों पीड़ित वरिष्ठ अध्यापकों को राहत प्रदान की जाए। शिक्षक संघ लालसोट ने अपनी 11 सूत्री मांगों को लेकर के ज्ञापन सौंपा और ज्ञापन के दौरान प्रदेश महासचिव जगदीश नारायण मीणा, ब्लॉक सभा अध्यक्ष लालसोट रामकेश सैनी, जिला अध्यक्ष सांवर राम मीणा, ब्लॉक अध्यक्ष गिरिराज प्रसाद मीणा, जिला महासचिव मीठालाल मीणा, जिला सभा अध्यक्ष चेतराम मीणा सहित कई शिक्षकगण मौजूद रहे। दौसा जिले से बड़ी खबर सामने आई है, जिसमें आप सभी को बता दूं कि लालसोट जमात चौराहे पर दर्दनाक हादसा हुआ है। बीती रात को घटना से कोहराम भी मच गया, तो वहीं अनियंत्रित डंपर ने 2 युवकों को टक्कर मार दी है। एक युवक की मौके पर ही मौत हो चुकी है, तो दूसरा गंभीर रूप से घायल बताया जा रहा है। लालसोट पुलिस थाने से गश्ती दल भी मौके पर पहुंचा और मौका स्थिति का जायजा लिया, तो वहीं घायल को एम्बुलेंस की सहायता से लालसोट के सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र भिजवाया गया और घटना की कुछ ही देर बाद परिजन भी मौके पर पहुंचे और उनका रो रो करके बुरा हाल है। तो वहीं हादसा इतना खतरनाक था कि मौके पर मौजूद लोगों की रूह कांप गई। श्रीगंगानगर से बड़ी खबर सामने आ रही है, जिसमें श्रीगंगानगर कूच के लिए किसान रवाना हो चुके हैं। कलेक्ट्रेट कार्यालय पर महापड़ाव डालने को लेकर के किसान पहुंच चुके हैं। तो वहीं बसों, ट्रैक्टर ट्रॉलियों से किसान का जत्थे पहुंच रहे हैं श्रीगंगानगर। साथ ही साथ पूरे हिस्से का पानी को लेकर के आज महापड़ाव किया जा रहा है। चलिए एक रुक कर देते हैं दौसा जिले की ओर, जहां पर आप सभी को बता दूं कि सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र बांदीकुई के पालिका अध्यक्ष इंदिरा बैरवाल के सानिध्य के अंदर सशक्त दल नियंत्रण पखवाड़े का शुभारंभ किया गया और इसी के तहत आप सभी को बता दूं ORS घोल के बारे में जानकारी भी दी गई है कि आखिर किस प्रकार यह घोल बच्चों के लिए ज्यादा प्रभावशाली रहेगा। तो आइए एक नजर डालते हैं पूरी रिपोर्ट की ओर। सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र बांदीकुई में पालिका अध्यक्ष इंदिरा बैरवा के आतिथ्य में सशक्त दस्त नियंत्रण पखवाड़े का शुभारंभ किया गया है और इसी दौरान बाल रोग विशेषज्ञ डॉक्टर SK सोनी ने उक्त पखवाड़े के तहत बताया कि 7 माह से 5 वर्ष तक के बच्चों को घर घर जाकर दिए जाने वाले ORS के पैकेटों के अलावा जिंक की गोलियां बांटी जाएंगी, जो बच्चों को इस मौसम में लगने वाली दस्त जैसी बीमारियों से निजात देगी। डॉक्टर सोनी ने वहां मौजूद लोगों को उक्त ORS के घोल के उपयोग में लेने के बारे में जानकारी दी और उक्त भीषण बीमारी से बचाव की जानकारी दी है। वहीं इसी मौके पर पालिका अध्यक्ष इंदिरा बैरवा ने छोटी सी बच्ची को ORS का घोल पिला करके 7 जुलाई से 6 अगस्त तक चलाए जाने वाले पखवाड़े का शुभारंभ किया है और इसी मौके पर चिकित्सा प्रभारी डॉक्टर SN शर्मा, रिटायर्ड CMHO OP बैरवा, ब्लॉक CMHO कपिल देव मीणा, पार्षद रामेश्वर गुर्जर, चंद्र मोहन आकोदिया सहित काफी संख्या में लोग मौजूद थे।